Good afternoon, all of you, and most welcome to our special Wow series talk show. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं हर इंडस्ट्री से अलग-अलग एक्सपर्टाइज लोगों को यहाँ पे लेके आऊंगी so that you all can learn a lot from their struggles, from their experience as well. Today, it is a pleasure and honor for me to have a versatile person who is not only a close friend but also associated with one of the largest business networking association. So please welcome him on the virtual stage. Now, before we call him, let me give you a round of short introduction. What is it that we do and what is it that we have been doing? So here we go. And this is something about Special Wow series, which is one of the vertical under my training organization, that is Invincible Wow. आप जानते हैं कि हम पिछले 12-13 सालों से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्कशॉप्स और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते आए हैं. सो दिस इज समथिंग व्हाट वी यूज्ड टू डू अंडर स्पेशल वाव सीरीज एट डिफरेंट लोकेशंस इन देहरादून as well as in the vicinity of Dehradun. We started doing these sessions at WIC initially. WIC के अलावा हमने काफी सेशंस CCD में, जंप स्टार्ट्स में और को वर्किंग हब्स में भी करे हैं with different people from different industries. You know me all professionally as a soft skills trainer that I am associated with universities as well as a lot of corporate across India. I have been in different newspapers for different kind of achievements. And during COVID days, after having a look at the kind of depression and frustration which was there in a lot of youth, so I started doing a lot of things online. And that was the first time I learned how to use even Zoom. उससे पहले तो मुझे मालूम भी नहीं था कि Zoom और WebEx का भी कोई प्लेटफॉर्म है. So since then we have been organizing lot of things online, that is debates, teachers training, as well as I keep doing many things for my ICI students as well. These are some of the pictures with my mentors and with me as my students of different universities. You know that I am on the panel of Urban Lifestyle. So I am with US Polo, Zara, Armani, as well as Flying Machine. Besides that, I am on the panel of Chitkara University. तो ये मेरे कुछ प्यारे से बच्चे हैं गुरु नानक LPU और चितकारा यूनिवर्सिटी के. और पिछले 2 सालों से हमने अपना ज्यादा काम ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है. So these are some of the pictures with my Bosch training group as well as CGI trainings, which I am currently working on. These are some of the pictures of my greatest and proudest achievement. You know that आपकी सबकी फील्ड में PhD हाईएस्ट होता है, ग्रेजुएशन या एजुकेशन डिग्री. मेरी फील्ड में डिस्टिंग्विश्ड टोस्टमास्टर is the proudest achievement and is the highest honor that I have got in terms of communication as well as leadership, which I got from Toastmasters International. Besides that, I am also a certified trainer from Dale Carnegie, जिसका बहुत ज्यादा नाम है हमारे ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी में. और ये मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं. उसके साथ साथ मैं एक मेंटोर भी हूँ, IITs और IIMs के साथ जुड़ी हुई हूँ. And you know that these are the different programs that I do: soft skills, communication, FDP, employability, and many more things. So before I go on speaking, you also know that I am a big chatterbox. अगर मैं एक बारी बोलती हूँ तो चुप नहीं होती. And this is another reason why I just don't take calls. I don't have time because I am also available online for most of my youth as a mentor. So here we go, and please do welcome. And it's a pleasure, as I said, to have the chartered accountant Gagan on the virtual stage. I know Gagan from last, I think so, it's almost 7-8 months now, and I see him as a rocking budding star. Because अभी मुझे कुछ ही टाइम पता चला पहले कि ये और भी बहुत कुछ करते हैं. तो अब मैं बोलते रहूंगी इससे पहले कि हम स्टेज गगन को देते हैं. सो गगन, प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा आप क्या करते हैं. हेलो एवरीवन. मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट देहरादून से, और मेरे को अराउंड 5 इयर्स प्रैक्टिस में हो चुके हैं.
और मैं अपनी प्रैक्टिस के अलावा मेनली अपने थोड़े कोचिंग्स भी लेता हूँ मैं टैक्सेशंस की। और मैं जो ट्रेनर्स होते हैं उनको ट्रेन भी करता हूँ। जो टैली एकेडमी जैसे होते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो दोनों तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, वो तो अभी चल ही रही है टैक्सेशन में। वंडरफुल। तो आप इनकी गंभीर लुक्स पे मत जाइए। ये एक बहुत मजेदार इंसान है। आई हैव सीन हिम रॉकिंग ऑन द फ्लोर एंड ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक छुपे रुस्तम है, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा टीचिंग भी करना इनको अच्छा लगता है। सो इन केस यू नीड एनीथिंग as far as chartered accountancy is concerned, taxation is concerned, please feel free to reach out to him। और अगर गगन, आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए सबके साथ जल्दी से। श्योर मैम, श्योर, मैं भेजता हूँ। ओके, वंडरफुल। और इसके साथ साथ अगर आप एक बिगिनर को कोई मैसेज देना चाहेंगे, तो वो मैसेज क्या होगा? बिकॉज आज की जनरेशन, आपको पता है, देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस एंड एंटरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड, इट्स नॉट इजी। सो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर यूथ? मैसेज मैम, स्पेशली अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करूं, तो बहुत से जो बिगिनर्स होते हैं और एंड तक आते आते जो वो सीए ड्रॉप कर देते हैं, उसका एक स्पेसिफिक और एक मेन रीजन होता है कि इंटेंशन। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आप फोर्सफुली सीए ज्वाइन ना करें। अगर आपके फ्रेंड कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई कर रहा है, तो आप उनको देख के ना करें। आपकी खुद की इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी खुद लगन होनी चाहिए, तो ही आप सीए ज्वाइन करें और आप अपने खुद से चूज करें। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जो सीए जो जल्दी से ड्रॉप कर देते हैं कि वो 4 दोस्त कर रहे हैं, तो चलो हम भी साथ में कर लेते हैं। ये कोई ग्रेजुएशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत एब्सोल्युटली। मेहनत है। डे 1 से हार्ड वर्क आपको करना है, क्योंकि स्पेशली जब आप आर्टिकलशिप में आते हैं, तो 3 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप साथ में एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर रहे हैं, सुबह से रात तक आप मेहनत कर रहे हैं। तो वो सिर्फ़ जब तक आपकी खुद की इंटेंशन नहीं होगी, आपकी खुद की डिज़ायर नहीं होगी, आप फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो डे 1 से हार्ड वर्क है, बट ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आपका हार्ड वर्क, आपका स्ट्रगल फ्रूटफुल होना होता है। और सबसे इसमें मेन चीज़ है कि आपकी इच्छा से होना चाहिए। किसी को देख के या फैमिली के प्रेशर से कभी ना करें। अपनी खुद की इच्छा बनाएँ कि मुझे हाँ सीए करनी है, और उसका एक रीज़न होना चाहिए, और रीज़न होता है तो आपसे मेहनत भी होती है। एब्सोल्युटली, ये चीज आप सब याद रखिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, वी गेट इन्फ्लुएंस्ड आफ्टर लुकिंग एट लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, और हमें लगता है कि जो चीज वो कर रहे हैं हमें भी वही करना चाहिए। तो जैसे कि गगन ने बताया, प्लीज डोंट डू दैट। यू नीड टू एक्सप्लोर योर ओन पोटेंशियल, यू नीड टू एक्सप्लोर योर ओन गोल्स, और उसको फॉलो फॉलो करिए, उसी पे ही फोकस करिए। So, as a starter, what are the three things that you want them to focus on to begin with their chartered accountant journey? सबसे पहला होता है कि आपको गोल सेटल हो। आपको पता होना चाहिए आपको करना है क्या। मीन्स अगर आप सीए कर रहे हैं, तो सीए में भी आपको उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न होना चाहिए। तो एक तो आपको गोल सेटलर होना चाहिए। सेकंड होता है आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आप Yes. किसी, क्योंकि बहुत लोग बीच में आपको मिलेंगे जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि अरे Right. नहीं सीए अच्छी नहीं है, बहुत लोग फँस जाते हैं। चाहे Yes. सीए हो या कोई भी प्रोफ़ेशन हो या कोई भी मेहनत कर रहे हो, खासकर एजुकेशन फ़ील्ड में, तो आपका गोल सेटल है और आपकी खुद से इंटेंशन है, एटीट्यूड आपका पॉज़िटिव रहना चाहिए। और उस एटीट्यूड के बेस पे आप हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के बिना तो कुछ नहीं होता। सीए, लोग कहते हैं कि 99% मेहनत है, 1% Hmm. किस्मत है, बट वो 1% किस्मत भी तब साथ देती है जब आप 99% मेहनत करते हैं। क्योंकि लोग बहुत 2-2 नंबर बढ़िया। से भी आपने रहते हुए देखे अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में। तो हार्ड वर्क, एटीट्यूड, और सबसे पहले आपको गोल सेटल करना है कि मुझे कितने टाइम में और कितने फर्स्ट अटेम्प्ट आपको पहले रख के चलना है। अगर नहीं होता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। तब आपका काम आता है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, और हार्ड वर्क तो आपको डे 1 से करना है। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें आपको चाहिए जो आपको सीए बना सकती है। और सीए ही नहीं, मुझे लगता है हर फील्ड में और खासकर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बढ़िया। आई फर्मली अग्री। इवन एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, सबसे पहले आप अपना गोल फिक्स करिए, एंड देन प्लीज डू वर्क ऑन दैट एज वेल, एंड डोंट जस्ट लूज होप, बिकॉज सीए एक थोड़ी लंबी जर्नी है। ऐसा नहीं है कि यू जस्ट क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन 1 year।
It is a long journey, so never lose hope and carry on with your hard work. बिकॉज बिना हार्ड वर्क के तो कुछ भी नहीं होगा. बिना हार्ड वर्क के इनफैक्ट जो ऊपर पहुंचता भी है वो उससे डबल स्पीड से नीचे गिरता है. तो ये याद रखिए आप. इनफैक्ट सीए के अलावा गगन ने एक बहुत बड़ा ग्रुप ज्वाइन करा है. आई वुड से बहुत बड़ी फैमिली जिसके साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ, मगर मेरा आजकल रिपोर्ट कार्ड बहुत पुअर आ रहा है because I am only focusing on my soft skills training, and due to my like buas are there from US, my bua is there from New York, my choti wali bua is there from New Jersey, and they are here after a long time. So I need to spend a lot of time with them as well, and this is keeping me away from my dearest BNI fraternity. Yes, my dear friends, there is something which is known as BNI. तो मैं चाहूंगी कि गगन आपको इसके बारे में बताएं जो कि एग्जीक्यूटिव टीम में भी जुड़े हुए हैं. प्लीज गगन, टेल अस समथिंग अबाउट बीएनआई. बीएनआई, पहले मैं उसकी आपको फुल फॉर्म बताता हूँ. बीएनआई है बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल. इट इज एक तरीके से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बिजनेस भी आपको प्रोवाइड करती है. एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सब एक एंथुसियास्टिक वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं. एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यार आप एक वीकली मीटिंग करते हैं, आप एक दूसरे से वन टू वन करते हैं, आप मिलते हैं और अपने बिजनेस को रेफर करते हैं, सामने वाले बिजनेस को समझते हैं. आपको एक दूसरे के बिजनेस को, प्रोफेशन को समझने का मौका मिलता है, अपने बिजनेस प्रोफेशन को समझाने का मौका मिलता है. ये सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है, तो दोनों वाओ, पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. वंडरफुल. हाँ जी, और और ये मेरे आपको को ये लगता जान है के कि खुशी होगी, इट इज अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन. सो इन विच एवर कंट्री यू आर, if you will just explore or reach out to anybody who is associated with BNI, they will all love to help you. It is just like one closely bonded family. जैसा कि अभी गगन ने बताया कि इसको आप ये मत समझिए कि एक ये प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशन है. नहीं, इसमें आप सोशलाइज भी करते हैं. और अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत मजेदार पिक्चर्स आ रही हैं हमारे ग्रुप में. सो दैट शोज दैट द बॉन्डिंग इज गेटिंग क्रिएटेड. एंड बिसाइड्स दैट वी वुड आल्सो लाइक टू नो व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव बीन ऑफर्ड इन बीएनआई. अभी मैम मैं एज अ ट्रेजरर सेक्रेटरी की पोस्ट पर अभी अपॉइंट हुआ हूँ. अभी एक वीक हुआ है. पहले मैं एज अ कोऑर्डिनेटर था जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे. तो इसमें सबको एक लीडरशिप का मौका मिलता है. लीडरशिप बेसिकली हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि हम सिर्फ यहाँ पर हम सिर्फ बिजनेस देते हैं. यहाँ हम लीडर्स क्रिएट करते हैं. बीएनआई क्रिएट्स लीडर्स. तो जब लीडर्स बनाते हैं तो सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी जुड़ जाती है. और जब ये दोनों मिलते हैं तो वंडर्स क्रिएट होते हैं. तो अभी मुझे जो पोस्ट मिली है वो एज ए सेक्रेटरी ट्रेजरर की पोस्ट मिली है, जहाँ पे मुझे एक तरीके से, मैं पहले भी फाइनेंस देखता था, अब मुझे बीएनआई का फाइनेंस देखना है. तो पोस्ट मेरा काम सेम है, बस अब इन पीएनआई है. मतलब इनको ऐसा रोल मिल गया है जो इनका एक्चुअली में डोमेन है ना. ही इज एवरीवेयर प्लेइंग विद मनी, चाहे वो अपनी सीट पे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट की और चाहे ये हो बीएनआई में. तो अब हमें ये बताइए, हु इज अ लीडर फॉर यू? हाउ डू यू डिफाइन अ लीडर? व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ लीडर? लीडर के मैम दो तीन बेसिक आपके जो कंसेप्ट होते हैं. एक होता है लीडर जो सबको साथ लेके चले. लीडर वो नहीं जो आगे चल रहा है और सब पीछे हैं. लीडर वो है जो सबके साथ. मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन. उसमें एक पॉइंट है, उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड में सिर्फ तीन ही तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं डिपेंडेंट, एक होते हैं इंडिपेंडेंट और एक होते हैं इंटरडिपेंडेंट. तो सुप्रीम इज द इंटरडिपेंडेंट. इंटरडिपेंडेंट वो लोग होते हैं जो सबको साथ में लेके चलते हैं. एंड दैट इज द लीडरशिप. लीडरशिप क्वालिटी यही है कि आप सामने वाले की इफेक्टिवनेस को अपनी इफेक्टिवनेस से ज्वाइन कराइए, कंबाइन कराइए, और फिर जो ग्रोथ होती है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ होती है. तो पहली क्वालिटी लीडरशिप की होती है कि आप सबको साथ में लेके चलिए. सेकंड होता है लीडरशिप की क्वालिटी, लीडर इज रीडर. तो लीडर वो होते हैं जो रीड करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जितना पढ़ेगा उतना समझेगा, जितना समझेगा उतना अप्लाई करेगा. और थर्ड क्वालिटी होती है लीडर की कि ही शुड बी अ गुड लिसनर. आप अपनी टीम की बात सुने. जब तक आप अपनी टीम की बात सुनेंगे नहीं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. तो मेरे समझ से तीन चीजें लीडर के अंदर होनी चाहिए. एक, वो सबको साथ लेके चले, ही शुड बी अ गुड लिसनर, और इट शुड बी, आपको सबको अपने टीम को एक साथ लेके चलने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए.
बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ही इज एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही सेज दैट लीडर इज समबडी जो सबको साथ लेकर चलता है, बिकॉज हमें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हम अकेले ही सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। रादर वी शुड आल्सो बी एम्पैथेटिक एंड वी शुड हेल्प एवरीबॉडी इन ग्रोइंग एज वेल। जैसा कि अभी हमें गगन ने बताया, हम सबको एक साथ मिलके चलना चाहेंगे। So he says that there are three kinds of leaders. One is dependent, the other is interdependent, and the third is Interdependent. First is dependent, independent, and interdependent. okay, dependent, independent and interdependent. तो इसको हम अगर दूसरा नाम दे तो हम कोलैबोरेशन भी बोल सकते हैं, Yeah, कोलैबोरेट definitely करना, collaboration. isn't Hmm. it? So Yeah, today's time is definitely. of collaboration. आप प्लीज ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, मगर दूसरों के लिए भी कुछ करिए। और अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं लाइफ में, तो ऐसा कुछ काम करिए जिससे हम सबको सर्व कर सकें। इन अदर वर्ड्स, जिससे दूसरे को कुछ बेनिफिट मिल सके, चाहे वो एजुकेशन हो या आप फूड इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं या रिटेल इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, सर्वे करिए मार्केट की और ये ढूंढिए कि कैसा मैं क्या काम करूं जिससे लोगों को कुछ बेनिफिट हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू गगन एंड विश यू अ वेरी ब्राइट एंड cheerful future. And please remember, Thank you. leader is the one who knows the way, who goes the way, and who also shows the way. So keep this in mind and stay connected. Very soon we will be meeting again with somebody new in the same fraternity. Thank you. Take care. Bye bye, Gagan. Thank you. Thank you for sparing your Okay, valuable bye.